ایک دوسرا طبقہ بھی آتا ہے جس کو سفید پوش طبقہ کہتا ہے۔ سفید پوش طبقہ وہ طبقہ کہلاتا ہے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دینے کے پابند نہیں ہے، لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو آج جو ہمارے زکوٰۃ سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ ان تین طبقات کو ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کے جو مسائل اور احکام ہیں انشاءاللہ ان کو ہم سمجھ لیں گے۔ تو زکوٰۃ کے فلسفے کی طرف ہم اگر جائیں تو بنیادی طور پہ مقصد اس کا وہی ہے کہ غریبوں کو بھی اپنی دولت میں شریک کرنا، اور یہ تصور رکھنا، یہ خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت، جو مال ہمیں دیا ہے، یہ اللہ ہم سے لے بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں یہ ہم سے لے سکتا ہے واپس، اور اگر اللہ چاہتے تو ہم دینے والوں کے بجائے لینے والوں میں شامل ہوتے۔ تو زکوٰۃ بنیادی اسلامی احکام میں سے ہے، اور قرآن مجید نے جہاں پہ بنیادی شرعی احکام کا ذکر کیا ہے وہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تین چار چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ اس کے فضائل کا آج موقع نہیں ہے، لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے اموال کے بارے میں، زکوٰۃ کے بنیادی مال کون سے ہیں، پھر جو جن لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے ان کی تفصیل ہم دیکھ لیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ ادا کیسے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے زکوٰۃ کے اموال یا مال زکوٰۃ کون سی چیزیں کہلاتی ہیں؟ تو یہ چار چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت، یہ چار قسم کے مال، ان میں سے کسی ایک مال کا مالک ہونا یا ان چاروں کا مال، چاروں کا مالک ہے، اور پھر اس کی قیمت لگا کر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کیسے کریں گے یہ ہم آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت ایک طرف یہ جمع کر لیے جائیں گے، دوسری طرف میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم پر جو مختلف طرح کی جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو جو قرضے ہیں وہ دوسری طرف ہوں گے جو ہم نے دوسروں کے ادا کرنے ہیں، اور ہمارے پاس جو سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت ہے وہ ایک طرف ہوگا۔ تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ ہماری ملکیت میں جو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت ہے اس کی مالیت کتنی ہے، اور ہم پر جو قرضے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اس کی مالیت اگر بن گئی ہے مثلاً 7 لاکھ روپے، اور جو قرضے ہم پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کی مالیت 3 لاکھ بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے 4 لاکھ روپے ہم پر ہمارے پاس موجود ہیں، اور 4 لاکھ روپے پر پھر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، یہ سب کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے بنیادی جو زکوٰۃ کے مال قرار دیے تھے ان میں سے پہلا جو مال زکوٰۃ ہے وہ سونا ہے۔ سونا ڈلی کی شکل میں ہو سکتا ہے، اینٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، زیور کی شکل میں ہو سکتا ہے، برتن کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ برتن ممکن ہے استعمال ہم کر رہے ہوں، ممکن ہے ہم استعمال نہ کر رہے ہوں۔ سونا کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل زیورات بنتے ہیں تو یہ سارے کے سارے زیورات ملاوٹ کے ساتھ ہی بنتے ہیں، ملاوٹ کے بغیر زیورات نہیں بنتے ہیں۔ تو سونا کسی بھی شکل میں ہوگا وہ مال زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیے چاندی کی طرف۔ چاندی بھی اسی طرح ہی ہے، چاندی ڈلی کی شکل میں ہو سکتی ہے، اینٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے، زیور کی شکل میں ہو سکتی ہے، برتن کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ استعمال میں یہ برتن استعمال کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، خالص ہو یا چاندی میں ملاوٹ کی گئی ہو، دو ہر شکل میں اس کو ہم نے اپنے پاس لکھ لینا ہے کہ جی میرے پاس چاندی کتنے تولے ہے، یا چاندی کا جو بھی برتن ہمارے پاس رکھے اس کی آج کی مارکیٹ ویلیو۔ مثلاً یکم رمضان کو مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو یکم رمضان المبارک کی مارکیٹ ویلیو سونے کی لے لیجئے،
चांदी की ले लीजिए। और उसके बाद फिर यकम रमज़ान मुबारक को अगर आपका ज़कात का साल पूरा होता है, तो फिर नकदी को देखना है। नकदी हो यानी कैश हो, बैंक में हो, अपने पास है, किसी को कर्ज़ कर्ज़ दिया हुआ है और मिलने की उम्मीद है। किसी जगह पे म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की हुई है, वैसे किसी बिज़नेस के दुकानदार को दिए हुए हैं कि आप अपने बिज़नेस में ये लगा लें। तो ऐसी किसी भी शक्ल में ये नकदी हो तो वो ज़कात का माल समझी जाएगी। करेंसी की शक्ल में भी नकदी हो सकती है, करेंसी के अलावा जो है और कोई ऐसी शक्ल नहीं होती। तो करेंसी है, सरमायाकारी कहीं कर रखी है, म्यूचुअल फंड में है, आपके बैंक अकाउंट में है, किसी दुकानदार के पास है, आपके दोस्त ने कर्जा लिया हुआ है, तो इन तमाम सूरतों में ये नकदी आपकी अपनी मिल्कियत ही है और उसकी आपने कीमत लगानी है। तो सोना मसलन किसी के पास 2 तोले है, 2 तोले मसलन 3 लाख का बनता है, चांदी है वो 10 तोले है मसलन और वो तकरीबन 2 लाख की बनती है। तो नकदी फिर मिला लेंगे, नकदी कितनी है, तो नकदी की कीमत भी मिला लेंगे। और चौथी चीज़ माले तिजारत, तिजारती साज़ो सामान, दुकानदार है तो उसका जो सामान बिकने के लिए है वो सारा तिजारती सामान कहलाएगा। दुकानदार नहीं है तो बेचने की नीयत से उसने जो-जो चीज़ें खरीदी हुई हैं, वो सारी चीज़ें उसके माले तिजारत में आएँगी। अच्छा, कोई चीज़ बेचने की नीयत से खरीदी थी और अब उसके बेचने की नीयत नहीं है, तो फिर वो माले तिजारत से निकल जाएगी जिस दिन उसने नीयत कर ली कि जी अब ये मैंने बेचनी नहीं है। तो बेचने की नीयत से खरीदी गई चीज़ और अब तक वो बेचने की नीयत बरकरार है, मसलन दुकान है वहाँ रखी हुई है या वैसे गोदाम में रखी हुई है, तो ये तमाम माले तिजारत है, वरना फिर वो माले तिजारत नहीं समझा जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ज़कात एबल एसेट्स या वो एसेट्स, वो असासे जिन पर ज़कात लाज़िम है वो 4 हैं। एक सोना किसी भी शक्ल में हो, दूसरा चांदी है किसी भी शक्ल में हो, तीसरा नकदी है बस, लेकिन नकदी में शर्त ये है कि किसी को कर्ज दी हुई है और वो मुकर नहीं गया, वो इनकार नहीं करता कि भाई मैंने तुम्हारा कर्ज नहीं देना। हाँ, बाज लोग कर्जा ले लेते हैं और फिर वो किसी तरह से भी हाथ नहीं आते हैं और फिर वो इनकार कर देते हैं, या बाज ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप कर्ज मांग ही नहीं सकते वापस, तो आपने उनको माफ़ कर दिया होता है। इसको बैड डेट्स कहते हैं, यानी ऐसे कर्ज़े जिनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, वो फिर माल ज़कात नहीं समझा जाएगा। चौथे नंबर पर माल तिजारत है। तिजारती साज़ो सामान की शर्त ये है कि बेचने की नीयत से खरीदा गया हो और अब तक बेचने की नीयत बाकी हो, तो फिर इस पर भी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें हो गई, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। इन 4 चीज़ों को हमने जमा करना है, इनकी वैल्यू आपने लगा लेनी है। यकम रमज़ान उमूमन लोगों ने मुकर्रर किया हुआ होता है और अगर आपकी मसलन उसके अलावा भी हो सकती है, यकम जो हो सकती है, यकम जनवरी हो सकती है, यकम दिसंबर हो सकती है, कोई भी डेट, वो डेट जिसको आप जो हैं ज़कात अदा करना आप पर फ़र्ज़ हो गया था, तो उस तारीख को अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन तारीखों में से एक तारीख समझ के महफूज करना भी ज़रूरी है। आजकल लोग इसको याद नहीं रखते हैं, अपने पास लिखते नहीं हैं, फिर ज़कात अदा करते हुए उन्हें परेशानी होती है कि अब किस तारीख को दें, कहीं अल्लाह का हक रह तो नहीं गया। तो इसका बहुत ख़्याल रखना है, ज़िंदगी के अहम तरीन डेट्स में से ये भी है कि हम ज़कात जिस तारीख को हम पे फ़र्ज़ हुई है, उस डेट को महफूज रखें। अमवाले ज़कात कौन-कौन से, अब ये एक सवालनामा है जो हमने पहले पढ़ लिया। अब ये देखें, 1 करोड़ का हीरा अगर आपके पास है, तो क्या आप पर ज़कात होगी? तो हमने पहले पढ़ा है कि 4 किस्म के माले ज़कात हैं, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। अगर हीरा रखा हुआ है तिजारत के लिए फिर तो होगी, लेकिन चूँकि हीरा ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, तो ना माले तिजारत है, इस वजह से इस पर ज़कात नहीं होगी।
एक 4 मंजिला घर किसी ने किराए पर दे रखा है, एक घर में रहता है, साथ वाला घर एक और घर बना के किराए पे दे रखा है, तो क्या उस पे ज़कात होगी? तो देखिए, किराए पे दिया हुआ तिजारत नहीं कर रहा। अगर वो बिल्डर है और घर बेच रहा है, फिर उसकी कीमत पर उसे ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन घर उसने बनाकर दिया हुआ है किसी को किराए पर, तो अब जो किराया मिलता जा रहा है वो कैश में काउंट कर लेगा। कैश वाली रकम जब जमा करेगा तो देखेगा कि भाई किराया कितना आ रहा है, तो वो किराया कैश की शक्ल में उसके पास मौजूद होगा, वो भी वो ज़कात में दे देगा। वरना इसके अलावा घर की कीमत उस पर, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। घर की कीमत लगाकर ज़कात अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। एक घर में एक आजकल पाकिस्तान में लोगों ने 2-2 मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, 2-2 कारें रखी हुई हैं, ये फ्रिज रखा हुआ है, 2-2 रेफ्रिजरेटर्स घर में पड़े हुए हैं। तो इस्तेमाल में ना आने वाले कपड़े हैं, तो इन पर कोई ज़कात नहीं है। ठीक है? ये बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि इन पर कोई ज़कात नहीं, क्योंकि ज़कातेबल एसेट्स कौन से हैं? एक सोना है, दूसरा चाँदी है, तीसरी नकदी है, चौथा माल-ए तिजारत है। शादी के लिए कुछ कैश रखा हुआ है, तो अब शादी होने वाली है या 1 साल बाद होगी। अब बच्चों की शादी के लिए किसी ने पैसे सेव करके रखे हुए हैं, या खुद कहीं जाना है उसने, और उसने मसलन ईद के बाद उसे जाना है सफ़र पे, और उसके लिए उसने पैसे जमा करके रखे हुए हैं 3-4 लाख रुपए या 1 लाख, या जितने पैसे भी रखे हुए हैं। तो शादी के लिए रखा हुआ कैश या किसी भी काम के लिए कैश रखा हुआ है, तो वो देखें, वो तिजारत, वो ज़कातेबल एसेट है, उसकी कीमत लगेगी, उसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। सोने का ज़ेवर जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो सोना ट्रंक में रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, उसकी कीमत लगेगी, उसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी है जी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इससे ये समझ आ गया होगा कि ज़कातेबल एसेट्स हैं या नहीं हैं। ठीक है जी, अब हम ये कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा साथ-साथ, आखिर में हम इंशाल्लाह सवालात के जवाब भी दे देंगे। अब चलते हैं, पहले नंबर पे हमने बहस पढ़ ली कि ज़कातेबल एसेट्स 4 होते हैं, सोना, चांदी, नकदी और माल-ए-तिजारत। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे कि ज़कात किस पर देना फ़र्ज़ है। तो हमने पहले पढ़ लिया है कि मालदार बंदों के 2 ग्रुप होते हैं, मालदारों के 2 ग्रुप होते हैं। एक मालदार वो होता है जिस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है, दूसरा मालदार वो होता है जिस पर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो ज़कात ले नहीं सकता। अब ये कैसे फ़र्क होगा? तो ये देख लेते हैं जी। देखें, मालदारी जो, यानी जिसे हम कहते हैं हमारी फ़िक़ही किताबों में साहिब निसाब होना, निसाब का मालिक होना, तो उसका मेयार क्या होगा? तो और इस साहिब निसाब ना होने का क्या होगा? इसको हम देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले मालदार शख्स, अगर कोई शख्स मालदार है यानी जिसके पास दौलत है, तो उसके पास कोई से 2 माले तिजारत हो सकते हैं, ठीक है? माले ज़कात हो सकते हैं, मसलन सोना और चांदी हो सकते हैं। एक बंदे के पास सोना भी है, चांदी भी है। एक बंदे के पास सोना भी है, साथ में पैसे नकदी कैश भी रखा हुआ है, 50,000, 25,000, 20,000, 5,000। तो जो भी अगर 2 माले ज़कात हैं, यानी सोना और चांदी है, चांदी और माले तिजारत है, माले तिजारत है और साथ में कैश है, तो इस सूरत में चांदी की कीमत का एतबार होगा, यानी 612 ग्राम चांदी, ठीक है? 52.5 तोले चांदी हम कहते हैं, जो ग्राम के एतबार से बनती कितनी है? 612.35 ग्राम चांदी बनती है। और कोई से 3 अमवाले ज़कात है, ये तो 2 की अगर 3 अमवाले ज़कात हैं तब भी यही हुक्म है, 4 अमवाले ज़कात हैं तब भी यही हुक्म है। तो उसके ऊपर ज़कात का कम से कम निसाब कितना होगा? 612 ग्राम चांदी की आज की कीमत। आज की कीमत कैसे निकालेंगे? तो आजकल बहुत आसान है, इंटरनेट पे फ़ौरन जाइए। कराची में तो सर्राफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रोज़ाना रेट आते हैं, अखबारात में भी छपते हैं।
تو آپ اس کے اوپر چلے جائیے، آپ کو چاندی کا آج کا ریٹ پتہ چل جائے گا۔ 612 گرام چاندی کا اگر آج کا مثلاً جو ہے وہ 1000 روپے ہے اگر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی 6,61,000 اور یہ آگے 2300 روپے یہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ 61,2300 روپے جو مثلاً اگر 1000 روپیہ ہے، باقی جو بھی ریٹ ہے آج کا ہم ریٹ آخر میں دیکھ کر بتائیں گے بھی کہ آج کتنا ریٹ ہے، تو اس میں ہم زکوٰۃ پھر کیسے کیلکولیٹ مثلاً آ جائے۔ تو اگر آپ کی یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے تو یکم رمضان کا ریٹ لیں گے آپ۔ یہ کن صورتوں میں ہوگا؟ اگر 2 مال زکوٰۃ ہیں، 3 مال زکوٰۃ ہیں یا 4 مال زکوٰۃ ہیں۔ مال زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کسی کے پاس صرف سونا اور چاندی ہے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں تو پھر یہ کریں گے کہ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا۔ یہ چاندی ہو تو 612.35 گرام بنتی ہے، اور اگر سونا ہو تو 87.479 گرام بنتی ہے۔ یہ وزن کے اعتبار سے سونے کا ہے۔ تو آج کا 10 گرام سونے کا ریٹ آپ کو بڑی آسانی سے وہی صراف اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن یا اخبار سے مل جائے گا یا انٹرنیٹ سے آپ کو مل جائے گا، وہاں آسانی سے آپ ریٹ اٹھائیے اور اس کے ساتھ ضرب دیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی آج کا مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح سے ہم کیا کریں گے، 612.35 گرام، اس سے کم ہوگی چاندی، 612 کے بجائے 611 گرام چاندی ہے، زکوٰۃ صرف چاندی ہے، پھر آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، اسی لیے ہم نے اس کو کیا عنوان دیا ہے، نایاب صورت ہے یہ، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہو، کیش ہو ہی نہیں، سونا ہی سونا ہو، کیش ہو ہی نہیں۔ ورنہ عموماً 1-2 ہزار روپیہ تو ہوتا ہی ہے نا ایک آدمی کے پاس، تو 1-2 ہزار روپیہ بھی ہے سونے کے ساتھ، تو پھر اس کے اوپر 612.35 گرام والی قانون لاگو ہو جائے گا۔ امید ہے اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے بتا دیجئے گا کہ وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ساتھ ساتھ میں سوال لکھتے جائیے گا کمنٹس بار میں۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں جی۔ پہلی چیز ہم نے پڑھ لی کہ جو زکوٰۃ جن لوگوں نے ادا کرنی ہے ان کے پاس دولت کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو ان کے پاس سونا اور چاندی 2 چیزیں ہوں گی، یا سونا چاندی اور نقدی ہوگی، یا سونا چاندی نقدی اور مال تجارت ہوگی۔ اگر 2 مال ہوں، 3 قسم کے مال ہوں، 4 قسم کے مال ہوں گے تو پھر چاندی والا نصاب لازم ہوگا، کیونکہ چاندی والے نصاب غریبوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، انفع للفقراء ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس صرف چاندی ہے، صرف سونا ہے، صرف نقدی ہے، صرف مال تجارت ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ صرف سونا ہے تو پھر اس کے لیے صرف سونے والا نصاب ہے 87.479 گرام سونا۔ اس سے کم ہوگا تو اس کے اوپر مثلاً 6 تولے ہے، 80 گرام سونا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ چاندی ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس صرف چاندی ہو تو چاندی کا نصاب ہے 612.35 گرام چاندی۔ یہ نایاب صورتیں ہیں، ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے جی۔ چلیں اب ہم اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس صرف سونا ہے 6 تولے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر سونا ہے تو صرف سونے کے لیے 87.479 گرام سونا ہونا چاہیے۔ چاندی ہے تو 50 تولے اگر چاندی ہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے لیے نصاب کیا ہے، 612.35 گرام چاندی ہونا چاہیے۔ اس سے کم پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف 50 تولے کا آثار قدیمہ چاندی ہے اور مالیت 1 ملین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 50
तोले का आसार कदीमा का कोई वो चीज़ है, चांदी है, और उसकी मालियत 1 मिलियन तक, मसलन आसार कदीमा यानी वो ऐसी चीज़ है जो आसार कदीमा में से है, और अगर उनको बेचने जाएं मार्केट में, ऐसा हो सकता है मसलन मोहनजोदड़ो की वहाँ बाकियात में से, या यहाँ मकली के कब्रिस्तान में से किसी बंदे ने खुदाई की, उसको एक 50 तोले चांदी का कोई बर्तन मिल गया, लेकिन उसकी मालियत बैन अवी मार्केट में या अगर किसी भी आसार कदीमा वाले के पास जाएगा तो 10 लाख रुपए है, तो क्या उस पे ज़कात होगी? नहीं होगी। इस वजह से कि जब सिर्फ किसी के पास चांदी हो तो उसके लिए फिर 50 तोले नहीं से ज़कात उस पर लाजिम नहीं होगी। उसके लिए 612.35 या 52.5 तोले चांदी ही निसाब हैं। ठीक है जी। सिर्फ नकदी है तो 50,000 रुपए अगर किसी के पास नकदी है तो क्या उस पे ज़कात फ़र्ज़ होगी? नहीं होगी। हमें ये देखना होगा कि चांदी का निसाब क्या है। चांदी का निसाब, अगर आज का निसाब हमें 1,000 रुपया तोला 1,000 रुपया ग्राम मिलता है, तो ये फिर 61,000 हो जाएंगे। 61,000 रुपए से कम पर ज़कात नहीं होगी। तो हमें देखना होगा कि इस नकदी की जो वैल्यू है वो कम से कम ज़कात का जो निसाब है 612 ग्राम चांदी, उसकी आज की वैल्यू जिस दिन ज़कात फ़र्ज़ हुई उस दिन की वैल्यू के से ज़्यादा है या कम है, फिर हम ज़कात का फैसला करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, ये पहला तबका तो हमने पढ़ लिया, मालदारों का तबका था। ये कौन सा था? मालदारों का तबका। अब हम आते हैं दूसरे तबके की तरफ, ये सफेद पोशों का तबका कहलाता है। सफेद पोश वो लोग कहलाते हैं जो ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है लेकिन ज़कात ले भी नहीं सकते। इनके लिए ज़कात देना भी जायज़ नहीं है, ज़कात लेना भी जायज़ नहीं है। ये कौन लोग कहलाते हैं? इनमें सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत के साथ बस एक चीज़ का इज़ाफ़ा है, ज़रूरत से ज़ायद सामान का, बस। तो ये एक चीज़ इनके लिए इज़ाफ़ी है जी, वो ये कि सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, इनकी वैल्यू तो लगाएँगे ही लगाएँगे, और ज़कात का मुस्तहिक बनने के लिए फिर ये भी देखेंगे कि ज़रूरत से ज़ायद सामान है कि नहीं। अगर किसी के पास सोना है और ज़रूरत से ज़ायद सामान है, दोनों की वैल्यू मिलाकर 612.35 ग्राम चांदी के रेट से ज़्यादा बन रही है। सही है, ज़रूरत से ज़ायद सामान मसलन टेलीविज़न हो गया, सही है, मसलन 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, 2 बाइकें रखी हुई हैं उसने, और इसी तरह घर में उसने बेतहाशा कपड़े रखे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें, या डिश एंटीना लगा पिछले दौर में होता था। आजकल के दौर में किसी ने 2 मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं। तो ज़रूरत से ज़ायद सामान को भी हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू भी लगाएँगे ज़कात अदा करते हुए कि ये बंदा ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं, उसका फ़ैसला हम इस पर करेंगे। तो सोना, हम एक तरफ सोने की वैल्यू लगाएँगे और ज़रूरत से ज़ायद सामान की वैल्यू लगाएँगे। अगर इसकी वैल्यू 612.35 ग्राम चांदी तक से कम हुई तो फिर हम उसको ज़कात दे सकते हैं, वरना उस बंदे के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। इसलिए इनको हमने क्या करार दिया? मुतवस्सित तबका या सफ़ेद पोश तबका। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सफ़ेद पोश यानी ज़कात को ले सकने या ना ले सकने का मेयार है कि किसी बंदे के पास सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत के साथ-साथ ज़रूरत से ज़ायद सामान भी इतना ना हो कि वो 612.35 ग्राम चांदी की कीमत तक पहुँच रहा हो। अब हम आगे चलते हैं, ज़कात का मसरफ़, ज़कात का मुस्तहिक कौन है? ठीक है जी। अब मसारिफ़ ज़कात की तरफ हम आ जाते हैं कि ज़कात का मुस्तहिक कौन है। सवालात अपने भेजते रहिएगा, आखिर में ही एक साथ ही उनके जवाब देंगे, दरमियान में जवाब देना मुमकिन नहीं है। तो देखिए जी, अब हम ज़कात के मुस्तहिक का पहला तो हमने बता दिया कि ज़कात का मुस्तहिक वो होता है
جی جو سفید پوش نہ ہو، سفید پوش کا مطلب ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اتنا نہ ہو کہ 612 گرام چاندی تک وہ پہنچ جائے۔ اب ہم چلتے ہیں زکوٰۃ کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ جو دوسرے نصاب کا مالک نہ ہو، صحیح ہے، جو کسی بھی دوسرے مال کے نصاب کا مالک نہ ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا مستحق بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سفید پوش نہ ہو۔ یہ افراد اہل نہیں ہے، مثلا سید کو نہیں دی جا سکتی، بیٹا اپنے والدین کو نہیں دے سکتا، ماں باپ اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، بیٹوں پوتوں نواسوں ان کو نہیں دے سکتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، ایسے لوگ نہیں دے سکتے جو جن کا گھر ایک ساتھ چلتا ہے، مثلا گھر میں ہانڈی ایک جگہ پکتی ہے، تو دو بھائی ہیں لیکن دونوں جوائنٹ فیملی کے طور پہ ایک گھر میں رہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ بھائی سوچے کہ چلو بھائی میرا بھائی اتنا غریب ہے کہ میں اس دفعہ اپنی زکوٰۃ اس کو دوں، تو وہ نہیں دے سکتے اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جن کا خرچ ایک ہو یا مفادات مشترکہ ہوں تو ان کو نہیں دی جا سکتی۔ جس سے بدلے میں کچھ لیا ہو تو اس کو بھی، مثلا اپنے ملازم کو آپ کہتے ہیں کہ چلو بھائی اپنے ملازم کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ملازم کو زکوٰۃ اگر دینی ہے تو اس کی تنخواہ بنا کر نہیں دینی، جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں تمہیں یہ 2500 روپے دوں گا، ملازمہ کو کہہ دیتے ہیں۔ تو ملازمہ کو اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کو بالکل الگ سے دیجیے، اس کی تنخواہ بنا کر نہ دیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ اس مہینے کام زیادہ کر لو چلو میں تمہیں 3000 روپے دوں گی، تو 3000 روپے دینے میں آپ نے سوچا چلو بھائی ساتھ میں 1000 روپیہ جو ہے زکوٰۃ کا دے دیں گے، ایسا نہیں کر سکتے آپ، جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ملازمین کو زکوٰۃ دینے میں کچھ احتیاطیں ہیں، مستحق اور غیر مستحق کی تحقیق کرنی چاہیے، زکوٰۃ کا مقصد جو ہے وہ مارکیٹنگ نہ ہو، مارکیٹنگ کے طور پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کو اجرت کا حصہ یا بونس کا حصہ بنانا یا موٹیویشن کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے، فرض کے طور پر ادا کرنی ہے، اس کو کسی بھی اور چیز کا حصہ بنا کر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کارکردگی کو معیار نہ بنایا جائے، نہ انعام کے طور پر دی جائے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ اچھا ہم دیکھیں گے کہ آپ میں سے آپ کے گھر میں 3 ملازمائیں ہیں، آپ نے کہا اس دفعہ زکوٰۃ اس کو ملے گی جو زیادہ اچھا کام کرے گا، تو اس طرح سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ملازموں کو اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم دینی ہے بالکل سپریٹ کر کے دیں، کسی اور نام سے دے سکتے ہیں آپ، یعنی اس کو کہیں چلو یہ تمہارے لیے گفٹ ہے، یہ تمہارے لیے عیدی ہے، بچوں کے کپڑے لے لینا، چلو رکھ لو اپنے پاس، کسی بھی نام سے آپ دے سکتے ہیں، لیکن کارکردگی کو معیار نہیں بنا سکتے، نہ یہ کہنا کہ تم نے کل کام کروایا تھا یہ لے لو اس کے پیسے، تو یہ نہیں دے سکتے۔ سید غیر سید کا فرق بھی رکھنا ہے، اگر کوئی ایسے گھرانے کی ہے تو ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ سیدوں کا، سادات کا ویسے ہم خیال رکھیں۔ بہرحال اب زکوٰۃ سے متعلق چند بنیادی اور اہم ترین مسائل دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکام کی طرف۔ دیکھیں زکوٰۃ کی تاریخ کا خیال رکھنا میں نے شروع میں بول دیا تھا، بہت ضروری ہے۔ قمری سال کی جس تاریخ کو آپ نصاب کے مالک ہو گئے ہوں تو اس تاریخ کو آپ نے نوٹ کر لینا۔ نصاب نمبر 1 کا ہم نے کہا، نصاب نمبر 1 تھا امیروں والا، جو دوسرا والا تھا نا، یعنی جس میں سفید پوش لوگوں میں شامل ہو گئے تھے آپ، وہ والا نصاب مراد نہیں ہے اس سے۔ تو جس تاریخ کو آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، مثلا سیلری آ گئی ہے یا دکان آ گئی ہے یا کسی نے گفٹ دے دیا آپ کو، اتنا سونا مل گیا یا اتنی چاندی یا اتنا سامان آ گیا کہ جو تجارت کے سامان مال تک پہنچ گیا ہے، تو اس ڈیٹ سے، یا مثلا شادیوں پہ بعض گھرانوں میں بہت زیادہ سونا دینے کا، یا دونوں طرف سے اپنے والدین کی طرف سے بھی مل گیا اور دوسری طرف سے بھی سونا آ گیا، تو اب اگر وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ آ گیا ہے تو پھر اس کے اوپر اس تاریخ کو نوٹ کر لیں، اسلامی سال کی تاریخ
का एतबार होगा, दूसरी शमसी तारीख का एतबार नहीं होगा। शमसी तारीख जो है वो 10 दिन आगे ज़्यादा होती है, इसलिए ख्याल रखना है कि इस्लामी साल को मेयार बनाया जाएगा, दूसरी जो शमसी साल है उसको मेयार नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात ये याद रखें कि ज़कात का हर साल उसी तारीख को आपने हिसाब करना है जिस तारीख को आप निसाब के मालिक बने हैं। तो और आपने 2.5% ज़कात देनी है, ठीक है? 2.5% आपने ज़कात अदा करनी होगी, ठीक है? और तीसरे नंबर पे ये बात देखिए कि साल गुज़रने का मतलब ये है कि हर माल पर साल गुज़रना लाज़िम नहीं है। साल गुज़रने के लिए मसलन अब जब आप मालिक बने थे तो सोना था, आपके पास चांदी थी और पैसे थे। अब ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि साल गुज़रने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास मसलन दरमियान साल में माल तिजारत आ जाता है। तो आप कहें कि इसकी ज़कात तब होगी जब मैं हाँ, इस पे ऊपर साल गुज़रेगा, तो ऐसा नहीं है। साल के शुरू में मसलन आपके पास सिर्फ़ 612 तोले 612 ग्राम चांदी थी। दरमियान में किसी ने सोना दे दिया, 6 महीने के बाद किसी ने आपको पैसे दे दिए, कैश में आपको गिफ्ट मिल गया या वैसे आपने जमा कर लिए। तो हर हर माल पर या हर हर चीज़ पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपका जो ज़कात के निसाब का जो मालिक बनना है, उसको साल गुजर जाए। अब मसलन 612 ग्राम चांदी आपके पास यकम रमज़ान को आ गई। 2 महीनों के बाद ऐसा हुआ कि 2 महीनों के बाद ऐसा हुआ कि आपके पास वो जो सामान है उसमें उसके साथ में पैसे मिल गए, ठीक है? चांदी थोड़ी-सी कम हो गई, इसी तरह चलता रहा, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। तो देखें, इस ज़्यादा कमी का कोई एतबार नहीं है। आप यकम रमज़ान को निसाब की मालिक बनी हैं, अगले साल यकम रमज़ान को ज़कात की निसाब की मालिक हैं, तो आप पर ज़कात अदा करना ज़रूरी हो जाएगा। यकम रमज़ान को अगर आपके पास 612 ग्राम चांदी के बजाय 610 ग्राम चांदी की कीमत बन रही है, ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं होगा। तो एतबार किसका है? जिस तारीख को आप पर ज़कात अदा करना लाज़िम हुई उस तारीख का, और जिस तारीख को आपने अगले साल ज़कात अदा करनी है उसका है। दरमियान साल में ऐसा हो सकता है कि किसी ने चोरी कर ली, डाका मार दिया, आपसे सारा चांदी छीन कर ले गया। लेकिन साल के आखिर में अगर दरमियान साल में सारा कुछ लेकर चला गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, कल्लाश हो गए, 1 रुपया भी नहीं बचा, तो फिर निसाब जो है नए सिरे से शुरू होगा। अगर दरमियान में थोड़ी बहुत बाकी रही, मसलन 1 तोले चोरी हो गया, 2 तोला चोरी हो गया और 5 तोले हो गया, 10 हो गया, बिल्कुल कल्लाश नहीं हुए, बिल्कुल माल ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर उस सूरत में ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा। तो दरमियान साल में कमी-बेशी का कोई एतबार नहीं है। हाँ, इसका एतबार ज़रूरी है कि बिल्कुल अगर ख़त्म हो जाएगी, फिर निसाब जो है वो नए सिरे से शुरू होगा, ठीक है? तो दरमियान साल में थोड़ी बहुत अगर अप डाउन आता रहा तो उसका एतबार नहीं होगा। तमलीक ज़रूरी है, एक शर्त ये है कि ज़कात जिसको दी जाएगी मालिक बनाकर दी जाएगी। ज़कात ये नहीं, इस तरह आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि जी मेरा फलाने ने कर्ज देना है लेकिन वो गरीब भी है, मैं उसको कर्जा माफ कर दूं, ज़कात हो जाएगी? नहीं होगी अदा। इसलिए कि किसी को मालिक बनाना ज़रूरी है, यानी मालिक बना जब दे रहे हैं तो उसको मालिक बनाकर उस वक़्त ज़कात की नियत ज़रूरी है। किसी को पैसे दिए हुए हैं और अब आप नियत कर रहे हैं कि चलो भाई ज़कात में कट गए, ऐसे ज़कात अदा नहीं होगी। तो तमलीक फ़कीर यानी ज़कात का माली मुस्तहिक को ज़कात के पैसों का मालिक बनाना, उस लम्हे पर आपने नियत करनी है ज़कात की, वरना फिर ज़कात अदा नहीं होगी। तो ये बुनियादी तौर पर हो गया।
मस्जिद की तामीर में खर्च करने से नहीं होगी। गरीबों की दावत कर दी, आपने कहा सैलानी में दे दो भाई, खाने वाने खिला दो। तो देखो, खाने वाने ऐसे सड़कों के ऊपर खाने खिलाने से, या अपने घर बुला लो तो इस तरह दावत कर देंगे, तो इस तरह से ज़कात की रकम अदा नहीं होगी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब एक और शर्त ये है कि कमरी का एतबार होगा, ठीक है। अगर कमरी तारीख का ही एतबार करना होगा आपको, और किसी अगर सहूलत के लिए शमसी तारीख का हिसाब कर रहे हैं तो देखें, शमसी एतबार से फिर हर साल में 10-10 दिन का गैप आएगा। दूसरी बात ये याद रखें, हमने कहा था तिजारती साजो सामान पर भी ज़कात है। तो अगर एक शख्स ने दुकान पे सामान रखा हुआ है, 2 लाख रुपए का खरीदा था, अब जो है वो कीमत उसकी 3 लाख रुपए हो गई। तो देखिए, कीमत फ़रोख्त पर ज़कात होती है। जब कोई तिजारती सामान होगा तो उसकी कीमत फ़रोख्त के मुताबिक ज़कात अदा करनी पड़ेगी। कीमत खरीद के मुताबिक ज़कात अदा कर नहीं की जा सकती। कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त में यकीनन फ़र्क होता है। हाँ, सिर्फ फुकहा ने इतनी इजाज़त दी है कि लमसम कर लिया जाए। लमसम का मतलब यह है कि अगर आप पूरी दुकान एक साथ बेचें किसी को तो क्या वैल्यू लगेगी, ठीक है। तो कीमत खरीद पर ज़कात अदा नहीं होगी, कीमत फ़रोख्त पे ज़कात अदा होगी। हाँ, लमसम की इजाज़त फुकहा ने दी है कि आप लमसम जो है वो वैल्यू लगवा लें अपनी दुकान की, फिर भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है जी। माल तिजारत किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो आगे बेचने की नीयत से खरीदी गई हो और ज़कात की अदायगी के दिन तक ये नीयत बरकरार हो, उसको माल तिजारत कहते हैं। तो ये सामान तिजारत या माल तिजारत है कि हर वो चीज़ जो आगे बेचने की नीयत से खरीदी गई है और ज़कात की अदायगी के दिन ये नीयत बरकरार है, तो वो चीज़ माल तिजारत कहलाएगी। ठीक है जी। तो ये बुनियादी अहकाम जो ज़कात के हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिए हैं कि ज़कात बुनियादी तौर पर 3 किस्म के मालों पर लाज़िम होती है। 3 किस्म के माल कौन से हैं? सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। आपने क्या करना है, हर शख्स ने अपनी मिल्कियत में मौजूद सोने, मिल्कियत में मौजूद चांदी, मिल्कियत में मौजूद नकदी, मिल्कियत में मौजूद माल तिजारत की वैल्यू लगानी है। अब हमारे यहाँ खानदानों में क्या होता है, माँ बाप सोना लेके रख लेते हैं जी, मेरी फलानी बेटी के लिए है, ये उस बेटी के लिए, ये उस बेटी के लिए, क्योंकि सोना आजकल तो इतना महंगा हो गया है कि उसको खरीदना मुमकिन ही बहुत मुश्किल हो गया। तो लोग जमा करके रखते हैं। तो देखें, शरीयत का उसूल यही है कि अगर आपने सोना खरीद लिया है, 1 तोला एक बेटी का, दूसरा तोला दूसरी बेटी का, तीसरा तोला तीसरी बेटी का, तो जितने तोले माँ बाप ने अपने पास रखा हुआ है, उस पर माँ बाप को ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, मिल्कियतन अगर अपनी बच्चियों के हवाले कर दिया जाए कि भाई ये तुम्हारा सोना है, तुम ले लो, उसको दूसरी बेटी को मालिक बना दें, तीसरी बेटी को मालिक बना दिया जाए, अगर उनके हवाले कर दिया गया, फिर जो है वो सोना, उसकी ज़कात माँ-बाप को नहीं देनी पड़ेगी, वरना मिल्कियतन उनको मालिक बनाने से पहले-पहले अपने पास रखा हुआ है, तो माँ-बाप को सोने की ज़कात देनी होगी। ठीक है जी। तो ये 4 किस्म के मालों पर ये माल ज़कात के में शुमार होंगे, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। सोना किसी भी शक्ल में हो, चांदी किसी भी शक्ल में हो, नकदी किसी भी शक्ल में हो, अपने पास हो या किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है। कर्ज़ा दिया हुआ है तो वो अगला बंदा इकरार करे कि जी मेरे से, मुझसे ले लेना भाई। तो उस पर भी वो भी माल ज़कात शुमार होगा। इन चारों में से चारों माल हैं तो चारों की वैल्यू लगेगी, 2 हैं तो 2 की वैल्यू लगेगी, 3 हैं तो 3, कोई एक है तो फिर उसकी वैल्यू लग जाएगी। ठीक है? तो ये सबसे पहले नंबर पे हमने 4 किस्म के माल तिजारत पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि मालदारी के 2 मेयार हैं। एक मालदार वो शख्स है जिस पर ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरा मालदार वो शख्स है जिस पे ज़कात देना तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो ले भी नहीं सकता। तो ज़कात देना फ़र्ज़ किसके ऊपर है? वो शख्स जिसके पास 2 किस्म यानी सा सोना और चांदी है, चांदी और नकदी है, नकदी और माल तिजारत है। तो 2 किस्म के माल जमा हैं,
612 ग्राम चांदी की कीमत तक पहुंच रहे हैं, उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है। 612 ग्राम चांदी की कीमत पे नहीं पहुंच रहे, ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं होगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में यकम रमज़ानुल मुबारक को सब अखबारात में हुकूमत रेट जारी कर देती है कि इस साल ज़कात का रेट ये है, यानी ज़कात कितने रुपए पर लाजिम आ जाएगी। यकम रमज़ान मुबारक को सब अखबारात में खबर छप जाती है। तो उसको बुनियाद बनाकर भी आप ज़कात का निसाब या चांदी 612 ग्राम चांदी का रेट आपको उस दिन यकम रमज़ान को पता चल जाता है। तो मालदार जी सिर्फ अगर उसके पास चांदी है तो 612 ग्राम चांदी, और अगर सिर्फ सोना है तो 87.479 ग्राम सोने का एतबार होगा। और फिर हमने अगले नंबर पे पढ़ लिया था कि मुतवस्सित या सफ़ेद पोश लोग, यानी जो माल जो जिन पर ज़कात अदा करना भी ज़रूरी नहीं है लेकिन वो ज़कात ले भी नहीं सकते। ये वो लोग होते हैं जिनके पास सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान, इन पाँचों की मालियत जो है वो 612 ग्राम चांदी तक पहुँच जाए, या इनमें से किसी एक माल की जो वो कीमत है वो 612 ग्राम चांदी की कीमत तक पहुँच जाएगी, तो फिर उसके ऊपर ज़कात लेना जायज़ नहीं होगा। ज़कात वो ले नहीं सकेगा, ज़कात अदा करना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। बाकी हमने कुछ मसाइल देख लिए, अब आखिरी में हम 5 मिनट में जदीद जो तिजारत से मुतालिक मसाइल हैं उनको देख लेते हैं जी। देखें, जो जदीद तिजारतों में जो सनती अमल में इस्तेमाल होने वाली, यानी फैक्ट्री है, उसमें मशीनरी है, उस पर ज़कात नहीं होगी। रॉ मटेरियल है, मसलन उसने केचप बनाना है तो उसके लिए टमाटर खरीद के रखे हुए हैं, ड्रमों के ड्रम भरे हुए हैं, तो इसकी कीमतें फ़रोख्त पर ज़कात है। तैयार शुदा माल है, मसलन केचप के पाउच बने हुए पड़े हैं, तो कीमत फ़रोख्त पर ज़कात होगी। ज़ेर तकमील माल है, यानी वर्क इन प्रोसेस कहलाता है, तो यानी वो दरमियान में पहुंचा हुआ है, ना कोई खरीद सकता है ना कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो उसकी मौजूदा कीमत पर ज़कात होगी। अगर कोई ख़राब माल है जो ना बिल्कुल लेकिन उसको बेचने की नीयत है कि ख़राब है लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बिक जाएगा, औने पौने भाव भाव जो है वो निकल जाएगा, तो औने पौने भाव जो निकलने वाली चीज़ें हैं उनकी कीमतें फ़रोख्त पर ज़कात होगी। अगर खराब माल है और ज़ाया करने की नीयत है कि डिस्कार्ड करना है, फेंकना है, तो फिर क्या है, उस पर ज़कात नहीं होगी। ठीक है, वो माल जिसमें अपना पैकिंग करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल है, पाउच वगैरह हैं, सही है, तो कीमतें फ़रोख्त पर ज़कात होगी। तो इन चीज़ों को के ऊपर जो है वो ज़कात इस तरह से हम अदा कर देंगे। अब थोड़ा-सा हम आगे चले जाते हैं कि अ, कर्ज़ के ऊपर जो ज़कात है उसके मसाइल क्या हैं? देखिए, कर्ज़ जो हैं वो कर्ज़ की नौइयत पर मदार है। हमने शुरू में ही कहा था कि कर्ज़ जो है आपने किसी को दिया हुआ है, इसी में बीसी वग़ैरह भी आ जाती है। बीसी जब हम डालते हैं, अमूमन लोग बीसी के बारे में पूछते हैं कि घरों में बीसी अमूमन डाली जाती है, कमेटी डाली हुई है। तो कमेटी या बीसी जब डाली जाती है तो अब कुछ पैसे दिए हुए हैं, कुछ अभी अदा करने हैं। बाज़ लोगों ने जो है वो कमेटी ले ली हुई होती है, बाज़ लोगों की कमेटी अभी निकली नहीं होती, तो उन पर ज़कात क्या है? तो ये असल में बीसी के पैसे कर्ज़ होते हैं। मसलन 1 लाख की बीसी आपने डाली है, 6 किस्तें आपने अदा कर दी हैं, 60,000 रुपए अदा कर चुके हैं। बीसी आपको नहीं मिली है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 60,000 रुपए आपके लोगों के पास हैं। तो आपने जब ज़कात के माल का हिसाब लगाना है तो 60,000 रुपए उसमें जमा कर देने हैं कि इस पर भी आपको ज़कात देना ज़रूरी है। और अगर इसके बरक्स हो जाता है, यानी इस तरह हो जाता है कि आपने 6 किस्तें अदा कर दी हैं, लेकिन आपने 1 लाख रुपया लोगों जो है वो कमेटी का वो आपको मिल गया है। तो अब 6 कमेटियाँ आपने अदा कर दी हैं, 1 लाख रुपया आप ले चुके हैं, इसका मतलब ये है कि 40,000 रुपए आपने लोगों के देने हैं।
40,000 रुपये आप पर क्या है, लोगों का कर्जा है। तो अब ये 40,000 रुपया उसमें से माइनस होगा क्योंकि आप कमेटी ले चुके हैं। समझ आ गई ये बात? तो कमेटी लेने और देने दोनों के हिसाब से अलग अलग हुक्म होगा, दोनों को मिलाना नहीं आपने। ठीक है जी। तो अब देखें हम कर्ज के अहकाम एक नज़र में देख के फिर सवालों जवाब की तरफ जाएंगे। जो आपके सवालात हैं, काबिल वसूल कर्ज हैं, ऐसे कर्जे हैं जिनको दिया हुआ है आपने लेकिन लोग मानते हैं हाँ भाई मुझ पे कर्जा है, तो कुल रकम पर ज़कात होगी। यानी जो कर्जा आपने लेना है, लोग मान रहे हैं कि भाई मैंने कर्जा देना है, कल ले लेना, परसों ले लेना, साल बाद ले लेना, तो उस पर ज़कात है। ऐसे कर्जे हैं जिनको जो आपने दूसरे लोगों पर वाजिब हैं, और लोग जो हैं, हाँ, वो ऐसे कर्जे जो आपने लोगों के देने हैं। सही है। मसलन कंपनी एक बनाई हुई है, दुकान है, कोई कंपनी है, तो उसने अगर कर्जे लिए हुए हैं, तो कंपनी के लिए जो कर्जे होंगे तो उनका हुक्म और आम आदमी के कर्जों का हुक्म इसमें मुख्तलिफ है। अगर आपने ज़ाती ज़िंदगी तौर पर जैसे आम खवातीन कर्ज लेती हैं, तो किसी से कर्जा लिया हुआ है तो उसको आपने माइनस करना है। और अगर कंपनी ने कर्जा लिया हुआ, फिर हुक्म यह है कि ज़कात की तारीख तक जो वाजिबुल अदा अब तक के किस्तें थी, उनको माइनस करेंगे। जो तारीख़ ज़कात तक के वाजिबात वाजिबुल अदा नहीं थे, उनको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है जी। तिजारती उधार जो है वो कौन से रिसीवेबल्स, यानी जो तिजारत में आपने लोगों को कर्जे दिए हुए थे और उनसे वापस मिलने हैं, मिलने की उम्मीद है कुल रकम पर ज़कात है, मिलने की उम्मीद नहीं है तो फिर ज़कात लाजिम नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये तिजारती उधार के अहकाम हो गए। अच्छा, तिजारती आपने कर्जे लिए हुए हैं, उनको अदा करना है। फौरी तौर पर वाजिबुल अदा कर्जे हैं तो निसाब से माइनस करेंगे, ये कंपनियों के लिए है। वस्त मुद्दती इसको कहते हैं मिड टर्म लोन्स। सही है। या किस्तों में अदायगी करनी है तो उसकी कुछ कई किस्तें हैं, मसलन ट्रांचेस बना देते हैं भाई, 1 लाख 3 महीने बाद, फिर 5 लाख, फिर इतने। तो इस महीने तक अगर तिजारती कर्ज है तो इस महीने तक वाजिबुल अदा कर्ज को माइनस किया जा सकता है। ठीक है जी। तिजारती कर्जा अगर बिल्डिंग और मशीनरी के लिए लिया गया है तो माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग और मशीनरी पर ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे अब किसी बंदे ने घर बनाया हो तो उस घर के ऊपर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह अगर किसी का फैक्ट्री है, उसकी बिल्डिंग खरीदी हुई है, तो फिर बिल्डिंग पर कोई ज़कात नहीं है। अगर किसी ने पैसा लिया है लेकिन तिजारती साजो सामान के लिए लिया हुआ है, तिजारती माल को खरीदने के लिए उसने कर्जा लिया हुआ है, तो फिर वो माइनस होगा। ठीक है जी। क्योंकि तिजारती साजो सामान पे ज़कात होती है, इसलिए उसके ऊपर उसके लिए अगर कर्जा लिया है तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बहरहाल ये चंद एक अहम अहकाम थे बुनियादी तौर पे जो हमने देख लिए हैं। अब जो आपके सवालात हैं हम उनकी तरफ आ जाते हैं जी। अच्छा जी। आवाज़। उम्रे के लिए पैसे जमा किए हैं तो उन पर ज़कात है? जी हाँ, उम्रे के लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं तो उन पर ज़कात अदा करना ज़रूरी होगी। आजकल 1 तोला सोने पे कितनी ज़कात आएगी? देखें, सिर्फ़ अगर आपके पास 1 तोला सोना ही है, फिर कोई ज़कात नहीं आएगी। 1 तोले सोने के साथ में 2-4 हज़ार रुपए आपके पास ज़रूरत से ज़ायद होने चाहिए। मसलन आजकल क्योंकि मेरा ख़्याल है, ज़ाती राय ये है कि 2,000 रुपए कम से कम एक बंदे के पास हो तो उसको समझा जाएगा कि जी इसके पास पैसे हैं। वरना 1,000 1,500 रुपए पैसे नहीं होते, ये ऐसे ही चंद दिनों में लग जाते हैं। तो सोने के साथ अगर आपके पास 2,000 रुपया है तो उस सूरत में आप पर जो है चांदी के हिसाब से ज़कात देना ज़रूरी होगी, यानी 2.5% आप उसकी वैल्यू लगाएंगे। मसलन 1 तोले सोने की आजकल कीमत है मसलन कितनी हो गई है, 1,80,000 रुपए मसलन, और आपके पास 20,000 रुपया वैसे है, तो कुल आपके पास हो गए मसलन 2 लाख रुपए।
تو 2 लाख रुपए के ऊपर आपने 5,000 रुपए जो है वो ज़कात अदा करनी है। समझ आ गया जी? ज़ायद बिस्तर हो तो उन पर ज़कात होगी? नहीं, बिस्तर पर ज़रूरत से ज़ायद सामान पर ज़कात नहीं होती जी, ज़कात बिल्कुल नहीं होती। बिस्तर बेचने के लिए बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं कि बेचेंगे, फिर उन पर ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। अगर ज़ेवर इस्तेमाल में है तो क्या ज़कात होगी? देखें, ज़ेवर का इस्तेमाल में होने या ना होने का कोई एतबार नहीं है। ज़ेवर इस्तेमाल में हो या कहीं पे रखा हुआ है, दोनों सूरतों में उस पर ज़कात होती है अगर वो 612 ग्राम चांदी के निसाब तक पहुंच जाता है और साथ में पैसे भी हैं आपके पास। अगर किसी ने कर्ज दिया है, 2 साल हो गए, 80,000, लेकिन मांगने पर वापस नहीं देता, तो उस साल जक़ात की मद में कटवा सकते हैं? नहीं, कटवा नहीं सकते। ये मैंने बता दिया कि आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है, वो कर्जा दे नहीं रहा। अब आप कह रहे हैं कि जी 80,000 रुपया जो मैंने तुमसे इससे लेना है वो जक़ात में माइनस हो गया, तो माइनस करवाने से जक़ात अदा नहीं होती। उसका तरीका ये होगा कि आप उससे कहो कि यार ये 80,000 रुपया जो है ये तुम ले लो, और ये मुझे जक़ात जो मैंने कर्जा तुझे देना है, मेरा देना है कर्जा, उस कर्जे में मुझे वापस कर दो। तो फिर वो 80,000 रुपये लेकर आपको वापस कर दे, फिर आपकी ज़कात अदा होगी। तो इसकी ये सूरत हो सकती है। कितने कैश पास हो तो उस पर ज़कात बनती है? देखें, अगर सिर्फ कैश है आपके पास तो कैश के एतबार से आपको 612 ग्राम चांदी का रेट लेना होगा। मसलन 612 ग्राम चांदी का आज का रेट मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि आज का सिल्वर रेट टुडे के नाम से अगर आप लिखेंगे इंटरनेट पर तो सिल्वर का रेट आएगा। आज का रेट है एक 1,961। 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,961 रुपए। तो ये हो गया 196। ठीक है जी, 196 रुपए 1 ग्राम के। इसी तरह हो गया ना? तो 196 को आपने ज़रब दे देनी है 612.35 से, हमने ज़रब दे दी। अच्छा जी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1,962, और इसको हमने, अच्छा जी, कैलकुलेटर ऑनलाइन में इसको भी शेयर कर देता हूँ ताकि हम इसको भी देख सकें। ठीक है जी। अच्छा, 612 ये लिख के ऑनलाइन है। जैसे ये शेयर स्क्रीन के पोजीशन पर ले आए, हैंग हो जाए मेरे, करके आपने 600 जो, हाँ अब हम हिसाब लगा सकते हैं जी। तो मसलन हमारे पास है 612 ग्राम। तो हमने आ, इसको ज़रब दे दी है। आज का हमने रेट क्या देखा, 1,000, मसलन 1,900 रुपये 10 ग्राम की है कीमत, तो ये बन गया 1,16,000 रुपये। तो 1,16,000 रुपये जिसके ऊपर पास हैं, तो वो उसके ऊपर ज़कात अदा करना ज़रूरी हो जाएगा जी। अच्छा जी, और बहुत से सवालात आ गए हैं। अच्छा, अपना जेवर 3 बेटियों के लिए रखा है, क्या उस पर ज़कात फ़र्ज़ है? जी फ़र्ज़ है।
तीन बेटियों के लिए रखा हुआ है, अगर उनको मालिक बनाकर नहीं दिया, या तो तीनों को मालिक बनाकर दे दे वरना ज़कात देना जरूरी होगा। अच्छा जी, 2 लाख की बीसी कमेटी है, उस पर ज़कात कैसे होगी? मैंने बता दिया, अगर बीसी आपको नहीं मिली है तो जितनी किस्तें आपने अदा कर दी हैं वो उसकी ज़कात देनी पड़ेगी, अगर वो ज़कात के पैसों तक पहुंच जाती है। अगर किसी के पास 1.5 तोला सोना है और उसके साथ 20 या 30 हज़ार रुपए हैं तो उस पर ज़कात है? जी हाँ, होगी। 1.5 तोले सोने की कीमत लगा लें, 1 तोला जितना भी है 1,85,000 वो, और दूसरा उसके साथ 90,000 जमा, और ये हो गया तकरीबन 9, 8, 16, 17, यानी 2,70,000 रुपये ये हो गया। साथ में 30,000 रुपये हैं तो 3 लाख हो गए। तो 3 लाख रुपए पर आपने ये 7,500 रुपये ज़कात देनी होगी आपको। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगर औरत के पास जी, अगर औरत के पास 10 तोले सोना है, अगर उसने अपने 3 नाबालिग बच्चों को 3-3 तोला सोना हवाले कर दिया तो फिर उस जेवर पर ज़कात होगी या नहीं? क्योंकि बच्चा साहिब निसाब नहीं होगा ना, साहिब निसाब नहीं होगा लेकिन वो मालिक तो बन जाता है। मालिक बनाकर दे दिए हैं उनके अकाउंट में या अपने पास या कहीं लॉकर में रखवा दिए हैं, मालिक बनाकर दे दिए हैं तो फिर ज़कात नहीं होगी। हाँ, अगर अल्लाह को धोखा देने के लिए किसी ने किया खुदा न खास्ता तो फिर उसका अज़ाब होगा। अगर किसी की रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले तो उन पर ज़कात होगी और हर साल होगी। नहीं, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे होते हैं ना वो जब मालिक बन जाएगा उसके बाद जितने यानी हर साल उसे ज़कात देनी होगी। रिटायरमेंट से पहले जो पैसे हैं वो चूंकि मिल्कियत में नहीं आते, इस वजह से वो उनकी ज़कात नहीं है। अगर सोना कंवारी बेटी के मिल्कियत में कर दिया है तो ज़कात कौन अदा करेगा? बेटी ही अदा करेगी जी। हाँ, अगर बालिग नहीं है तो फिर ज़कात नहीं अदा करनी होगी, लेकिन सोना अगर बेटी के पास है तो फिर सोने की कोई ज़कात नहीं होगी। क्या बेटी माँ बाप का ज़कात दे सकती है? नहीं दे सकती जी। क्या ज़कात रेट के हिसाब से देंगे अगरचे सोना कम हो, यानी 7.5 से कम हो? देखिए, ज़कात मैंने बताया, अगर सिर्फ सोना है तो फिर तो सोने का निसाब ही देखेंगे, यानी 7.5 तोले सोना। अगर उसके साथ चांदी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा चांद के सोने और चांदी का रेट दोनों मिलाकर। अगर किसी के पास सोना है लेकिन इस्तेमाल में नहीं और जायदाद भी है, मुश्तरक है, लेकिन उसे भी कोई फायदा नहीं मिलता तो क्या ऐसे लोगों की ज़कात दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती जी। ऐसे लोगों को ज़कात नहीं लगेगी अगर उनके पास सोना है और इसी तरह जायदाद भी है, उनकी मिल्कियत में अगर है तो नहीं दी सकती। जबकि घर के 2 अफराद कमाई भी कर रहे हैं और उनके वालिद भी ना हों और वो ज़रूरियात के साथ अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करते हों तो कभी-कभी तो उनको ज़कात दी जा सकती, नहीं दी जा सकती जी। अच्छा, अगला सवाल पूछा है कम से कम कितने सोने पर ज़कात अदा करना लाज़मी है? तो कम से कम का निसाब ही आपको बता दिया ना, 87 ग्राम सोना। 87 ग्राम जो सोना है इसको हमने शुरू में आपको बता दिया था, स्क्रीन पर दोबारा आपको दिखा देते हैं कि कम से कम सोने का निसाब ये है 87.4 ग्राम सोना, इससे कम पे ज़कात नहीं है। 1,000 पर कितनी ज़कात बनेगी? देखें, फिर 1,000 पर 1,000 के ऊपर 250 रुपये ज़कात है, 100 रुपये पर 2.5 रुपये ज़कात है, इसको याद रखिए। घर में इस्तेमाल शुदा चीज़ों को छोड़कर रखे हुए सामान पर ज़कात लाजिम होगी? नहीं जी, इस्तेमाल शुदा चीज़ों को छोड़कर रखे हुए सामान पर कोई ज़कात नहीं है। ये हमने बता दिया था, इससे ज़कात लेना जायज़ नहीं होता। जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है वो सिर्फ़ उसका एतबार किस में है? ज़कात लेने में है। ज़कात देने में ज़रूरत से ज़ायद सामान का कोई एतबार नहीं है। ये बात अच्छी तरह याद कर लीजिए। जो सानत चौंधी पहना हुआ है उस पर ज़कात देनी है? जी हाँ, पहना है या रखा है दोनों का एक हुक्म है, इस्तेमाल में हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसके पास सिर्फ 2 तोला सोना ही है, पैसों का मालिक नहीं है तो ज़कात होगी? नहीं होगी जी, आपने सही पूछा। 1 लाख पर क्या ज़कात निकलेगी? 1 लाख रुपए पर 250 रुपये ज़कात आपको अदा करनी, 2,500 रुपये। 1 लाख है तो फिर 2,500 रुपये। मैंने आपको बताया था 2.5%, 2.5% आपको ज़कात देनी है। सोने की पिछले साल की ज़कात देनी थी,
इस साल अदा करें तो इस साल क्या रेट? नहीं जी, सुमैया साहिबा ने ये सवाल पूछा है कि सोने के पिछले साल ज़कात देनी थी लेकिन नहीं अदा की। तो देखें, पिछले साल आपने जो ज़कात देनी थी वो थी मसलन यकम रमज़ान को, तो आप क्या करेंगी, इंटरनेट पर जाएँ, पिछले साल यकम रमज़ान की डेट निकालें, उस डेट को जो सोने की वैल्यू थी उस वैल्यू को लगाएं और उतने पैसे जो पिछले साल के एतबार से ज़कात के बनते थे वो देंगे, आज के एतबार से नहीं देंगे। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ज़कात पिछले साल के हिसाब से आपने देनी है और पिछले साल का रेट इंटरनेट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। हमने अपने हफ्त रोज़ा शरियन बिजनेस में एक दफ़ा तकरीबन 60 सालों का जो पाकिस्तान में सोने का रेट है वो सारा भी शाया किया था। उसमें हमने 3 तोले का सेट है लेकिन वो बेटी के लिए रखा है, कमेटी डालती हूँ लेकिन साल पूरा होने से पहले इस्तेमाल हो जाती है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उस सेट पर ज़कात होगी। देखें, 3 तोले का सेट है, पैसे नहीं हैं तो ज़कात नहीं होगी, लेकिन अगर कमेटी डाली हुई है और पैसे आपके पास बचे हुए हैं तो फिर आप पर ज़कात अदा करना ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए पैसे अपने पास ना बचे रहने दीजिए। ठीक है, तो आप रशीदा साहिबा ने ये सवाल पूछा है, तो इसका ख़्याल रखें कि पैसे आपके पास बचे हुए ना हों। ससुराल की तरफ से सोना बहू को मिले और वो सोना बहू के पास ही है, उसको बेच नहीं सकती, तो पैसे भी ना हों तो वो क्या करे? और उसके पास पैसे भी ना हों, देखें सिर्फ़ सोना है और फिर उसके पास 7.5 तोले सोना यानी 87.479 ग्राम सोना पहुँच जाता है। तो फिर आपको ज़कात देनी है। पैसे नहीं हैं तो सोना बेच कर दीजिए, ठीक है? अगर 87.479 ग्राम सोने से कम है आपके पास सोना, 3 तोले, 4 तोले, 5 तोले, 6 तोले है, फिर आप पर ज़कात अदा करना कोई ज़रूरी नहीं होगा। हज़रत जी, अगर घर वालों ने सोना लिया है बेटी के लिए लेकिन अभी तक मालिक नहीं बनाया, तो फिर उसकी ज़कात कौन देगा? माँ-बाप देंगे, जिन्होंने रखा हुआ है। बड़ा भाई अगर उसने खरीद के रखा है तो बड़ा भाई देगा। यानी जो उसका वो है तो उसको देना पड़ेगा जिसकी मिल्कियत में है। मेरे पास 5.5 तोले सोना है और कोई रकम नहीं, कोई ज़कात नहीं देनी होगी, उम्मे अहमद साहिबा ने पूछा है, तो कोई ज़कात नहीं देना होगा। शौहर तहक़्क़ुर है और मक़रूज़ है, तो क्या मेरे पे ज़कात बनती है? नहीं जी, आप पे ज़कात नहीं बनती। मेरे पास 5.5 तोले सोने हैं और पैसे नहीं हैं, कोई रकम नहीं है, तो कोई ज़कात आपने नहीं देनी जी। आसिया साहबा ने पूछा, अगर 1 तोला सोना भी है, साथ में 2000 रुपए, तो क्या हुक्म है? देखिए, 1 तोला सोना है, 2000 रुपए भी हैं, तो फिर आपको ज़कात देनी होगी। 2000 रुपए अगर आपके पास ज़ायद हैं, साल गुज़र गया इसी हाल में, तो आपको ज़कात देना होगी। ठीक है, 1 तोले सोने का आज का वैल्यू ले लीजिए, आज की मसलन 1,85,000 रुपए है वो, साथ में 2000, 1,87,000 इनकी कीमत लगाइए। ससुराल वालों के दिए हुए सोने पर ज़कात शौहर ने देनी है, बीवी ने? देखें जी, बीवी का सोना है तो बीवी ने ही देनी है, शौहर ने नहीं देनी। क्योंकि अक्सर निज़ाह के मामले में ससुराल वाले सोना ले लेते हैं। देखें, ये ससुराल वालों का सोना लेना जायज़ नहीं है, हराम है, उनको शरई मसला बताना चाहिए, ऐसे नहीं होता। अच्छा, 16 साल का हिसाब कैसे लगेगा? 16 साल का हिसाब मैंने आपको बता दिया है कि आपने इस तरह हिसाब लगाना है कि इंटरनेट पे जाइए, सराफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का डेटा आपको मिल जाएगा। जो तारीख आपके ज़कात देने की है, वो तारीख मसलन यकम रमज़ान आप 2022 का निकालिए, 21 का निकालिए, 20 का निकालिए, इस तरह करते-करते 16 साल का निकाल लीजिए और आप किसी बंदे को भेज दें सराफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के दफ्तर में, आपको एसोसिएशन के दफ्तर से पूरा डेटा मिल जाता है। हमने 7-8 साल पहले शाया किया था, वो तकरीबन 60 साल का हिसाब, लेकिन इंटरनेट पे मिल जाता है, तो आपको इंटरनेट से तलाश करना होगा। शादी में हक महर में जो सोना बहू को मिले है, वो इससे धोखा लेकर वह बेच दिया गया कि दोबारा बनवा कर देंगे, तो इस सूरत में बीवी अपने शौहर के लिए हलाल होगी। ये तो और मसला है, ये कि ज़कात का मसला नहीं। ज़कात का मसला मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सोना आपको दिया गया था ना, वो सोना आपका हो गया है, आपको ज़कात देनी है। अगर शौहर ने कहा कि भई मुझे दे दो, तो मैं आपको बनवा दूँगा, तो आपको जब इसका मतलब ये है कि उतनी वो जो पैसे हैं, वो इतने पैसे जो हैं वो आपकी मिल्कियत हैं और वो आपके शौहर पर कर्जा हैं।
تو شوہر ان کا مقروض ہے، شرعی طور پر اسے دینا ضروری ہے۔ اور باقی یہ خاندانی مسائل ہیں، یہ میرے خیال میں کسی کو تفصیل سے بتا کر اس کا حل پوچھا جا سکتا ہے۔ کیا سونے کی طرح پیسوں پہ سال کا گزرنا ضروری ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے بتایا، ہاں پیسوں سال گزرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس تاریخ کو مال کے مالک بنے تھے اس تاریخ کو سال گزر جائے۔ مثلا پچھلے سال یکم رمضان کو مالک بنے تھے، اس سال یکم رمضان تک، جب یکم رمضان آئے گی پھر دیکھیں گے کہ کیا آپ کے پاس 612.35 گرام چاندی کی قیمت تک پیسے ہیں۔ اگر مثلا ابھی ہم نے حساب لگایا 1,12,000 یا جتنے بھی ہزار، تو 1,12,000 روپے کی پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دینا فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر شوہر خرچہ نہ دے تو زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے؟ سونا بیچ کر؟ دیکھیں، سونا اگر سونے پر ویسے تو نہیں ہے، اگر 87 گرام سونا، یہ 7.5 تولے جو ہے وہ سونا ہے، تو اس سے زائد پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے زائد ہے، مثلا 8 تولے آپ کے پاس سونا ہے، ہینا عمر صاحبہ نے پوچھا ہے کہ تو اگر 8 تولے یا 8.5 تولے ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور پھر سونا بیچ کر دینی پڑے تب بھی دیں، ورنہ سونا اتنا اتار کر دے دیجئے۔ ہر سال زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ میں نے بتا دیا تھا، اگر ہر سال کی تاریخ کو نصاب کے مالک ہیں تو دینا ضروری ہے، ورنہ دینا کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہر سال زکوٰۃ دینا اس پر ضروری ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو، جو ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ سونا، چاندی، نقدی مالی تجارت کا مالک ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا وقت بہت سارا اوور ہو گیا ہے۔ اب کوئی اس کے علاوہ سوال ہو تو ایڈمن کو بھیج دیجیے گا، میں بعد میں انشاءاللہ جواب بھیج دوں گا، یا کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب رہ گیا ہے تو میں نے جلدی سے سارے میسیجز دیکھے ہیں، تو ایڈمنس کو بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ جواب عرض کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔